Welcome back everyone in the series of Module 11, and in this particular series this is going to be one of the most important series among all these module videos that I've put till now, because in this one I'm going to talk about the exact things that you actually need to clear this particular paper. See, this paper is a very big one, we know, right? It is very big, but all that you can do to clear this paper is smart work. Hard work is definitely necessary, but see, this is a theoretical paper. This is not a practical thing that you require a lot of hard work. Maximum of the exams that are being conducted and that are being actually cracked very easily is through smart work than hard work. Okay, whatever the exams that we are giving, from our point of view, definitely this is very important. But if you consider some other competitive exams in outside our field, like it may be even any UPSC exam or any other exam, any defense exam or anything, any engineering exam, okay, any technical exam, they, most of the smart candidates, what they do is they will do smart work, not hard work. So you have to keep in mind that for any module, ठीक है, कोई भी मॉड्यूल हो, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, ज़रूरी करना है। ये हार्ड वर्क भी लगेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर पता है कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन तीनों सवाल का आंसर आपको अगर मालूम है, then it is very easy for you to actually crack any module. Okay, and this suggestion I'm telling you, this suggestion is not only for module 11, this suggestion will be applicable to any module. Okay, like I'll tell you how it is done. See, uh, I'll be just discussing the syllabus today of module 11 and how you are going to do it. Okay, हर एक जगह पे मैं बुक का मेंशन कर दूंगा कि कौन से बुक से क्या आने वाला है, कौन सा बुक ऑल्टरनेटिव है दूसरे बुक का, और कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एज पर माई एक्सपीरियंस. आई हैव अप्लाइड ऑलमोस्ट 3 times टिल नाउ एंड फाइनली हैव क्लियर्ड इट. एंड ये 3 अटेम्प्ट में आई हैव रीच्ड वेरी क्लोज टू the cutoff. But the thing is that reaching the cutoff twice means, if you are prepared and then you reach the cutoff very close, which means that you definitely earn a lot of experience from that particular exam, right? So from that particular point of view I can say that ये मॉड्यूल ना, जितना दूर, मतलब दूर से लगता है कि इतना मोटा बुक है, इतना सारा, इतना लंबा सिलेबस है, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, इवन मोर देन 20 चैप्टर्स वी हैव, बट it is not that important also. Like there are a lot of such chapters जो आपको करना भी नहीं है, आप नहीं भी करोगे still you can pass. Okay, और if आप बेसिक जानते हो उसका तो भी आप पास कर सकते हो. Like the questions are so simple from there that you will be surprised to know कि वहाँ से ना आप बिना पढ़े भी पास कर सकते हो उस चैप्टर्स को, बिकॉज ऑलरेडी वो आपको मालूम है. जो क्वेश्चन बैंक करोगे तो भी आप लगा लोगे वो सारे आंसर. ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो आता है दैट इज़ थ्योरी ऑफ फ्लाइट. अब इसका 2 पार्ट है. एक है कि एरोप्लेन एरोडायनामिक्स एंड फ्लाइट कंट्रोल्स. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जो कोई भी फील्ड में जो है उसको खुद के नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, नॉट ओनली फॉर मॉड्यूल, खुद के नॉलेज के लिए यू हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर बुक, दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ये सबसे बेस्ट आपको मिल जाएगा यासा बुक से. Now what is this YASA book? For a lot of youngsters, they know about the this particular book that have been incorporated by YASA. And बाहर क्या होता है, यूरोपियन स्टेट में वो लोग अपना सेपरेट मॉड्यूल का बुक बना लिए हैं, और उसी बुक से क्वेश्चन आता है, सब कुछ वहीं से होता है. हमारे यहाँ पे DGCA ने क्या किया है, उस बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरे बुक को भी फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग बहुत सारे बुक को मिला के फिर हम लोग का सिलेबस बनता है, और हर एक जगह से क्वेश्चन आता है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इज़ यासा बुक. ठीक है, और उसके बाद आता है फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक्स जो भी इंपॉर्टेंट है एज पर द सिलेबस. ठीक है, तो यासा बुक से ऑलमोस्ट आप पूरा बुक कर लोगे. पूरा बुक मतलब क्या, मतलब ऑल द चैप्टर्स इफ़ यू जस्ट टच वन बाई वन, देन इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम. बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम यासा बुक. ऑल्टरनेटिव में इस चैप्टर का कौन सा बुक है, AMR, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर. लास्ट में मैं पूरा बुक का डिटेल दे चुका हूँ. ठीक है, एकदम लास्ट में आपको मिल जाएगा PDF में. एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर ये जो बुक है AMR ऑब्लिक में दिया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतना भी नहीं आता है. जो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में मैं शेयर कर दूंगा, या फिर आपको ऑलरेडी मिल चुका है. देयर आर फ्यू नोन पीपल इन द फील्ड, दोज आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग गुड क्वेश्चन बैंक्स, जो बहुत लोगों को पता है उन लोगों के बारे में, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा. एनीवे,
सो दोज क्वेश्चन बैंक्स आर ऑल्सो कंसिडरिंग गुड क्वेश्चंस जो रिपीट भी होते हैं और बहुत आसान भी है। लेकिन यासा बुक से करोगे तो क्या होगा, आपका ये पूरा सिलेबस कम्प्लीटली क्लियरली दिया हुआ है, एग्जैक्टली सिलेबस के बेसिस पे दिया हुआ है और आप सारे पॉइंट को टच कर रहे हैं। वो ये लेफ्ट साइड में जो स्टार मारने का ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक ये है कि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से छोटे छोटे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, ठीक है, 15-20 तो आ ही जाएगा। फिर हाई स्पीड से कम सवाल आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार नहीं, ठीक है, लेकिन हाई स्पीड से भी सवाल आते हैं। कहाँ का आएगा, मैक नंबर का आ सकता है, सबसोनिक क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, ट्रांसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, इसको बस सबको टच करके जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है। एसी कार मोड में ये जो थ्योरी ऑफ फ्लाइट जो एक बुक है, जो एसी कार मोड हम लोग मॉड्यूल 8 के लिए करते हैं, उस बुक में भी इसका थोड़ा पार्ट नीचे दिया हुआ है, लास्ट के 1 या 2 चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ट्रांसोनिक फ्लाइट है, शायद हाई स्पीड थ्योरी भी है, वहाँ से आप अगर चाहते हो तो फॉर योर नॉलेज यू कैन डू इट फ्रॉम देयर, अदरवाइज यासा बुक इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब मॉड्यूल 2, जो भी आपको यासा बुक कर सकते हो या फिर AMR इज़ एन ऑल्टरनेटिव। यासा को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना, ठीक है। यासा बुक में क्या है कि ये पूरा इक्वली हर एक पॉइंट को टच करके गया हुआ है और सबसे क्लोजेस्ट आंसर और सबसे बेस्ट लाइक क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक ओनली, इस चैप्टर से भी, ठीक है। तो ये जितने सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये सारा वहाँ से आप कवर अप आराम से कर सकते हो। देन यू हैव गॉट द पार्ट 3 में है एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे फ्यूजलाज है, विंग है, फिर आपका स्टेबलाइजर्स हैं, फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस है, नेसल एंड पाइलॉन है। तो ये सारे जो छोटे छोटे सब चैप्टर्स हैं, मतलब उस चैप्टर के अंडर में, चैप्टर 3 के या सब मॉड्यूल 3 के अंडर में ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स यासा में बहुत अच्छी तरीके से कवर्ड है। आप यासा से कर सकते हो, चाहे तो आप थोड़ा AMR भी देख सकते हो। AMR में ना ये 1 या 2 चैप्टर में सारा ये तीनों चैप्टर कवर हो जाएगा आपका, पहले 1 या 2 चैप्टर में। तो AMR फॉर योर नॉलेज यू कैन डू इट, बट वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही सवाल बहुत कम आते हैं, ठीक है। वो सवाल आपको क्वेश्चन बैंक में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, डोंट वरी। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, दैट इज़ एयर कंडीशनिंग एंड केबिन प्रेशराइजेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनली यहाँ से क्या पढ़ना है, देखिए मैं ग्रीन में हाईलाइट करके रखा हूँ। मेनली यहाँ से आपको पढ़ना है ACM, दैट इज़ एयर साइकिल मशीन, ओके, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, देखिए मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर से एयर साइकिल को भी हाईलाइट करके रखा हूँ, राइट, और टिक भी मार रखा हूँ, ठीक है। इस टिक का लॉजिक क्या है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये टिक आपको नीचे भी मिलेगा, और भी जब जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ ना धीरे धीरे PDF का, तो ये टिक रहेगा हर जगह पे। तो आप जब इस पर्टिकुलर सिलेबस का ये जो PDF है ना, इसको प्रिंट आउट करोगे तो इसी जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट मैंने मार्क किया ना, इसी को किया करो और उसी पर्टिकुलर बुक से किया करो। ये तो यासा में जितना है बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। सर्विसिंग का पार्ट होता है एक लास्ट में, सर्विसिंग इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ से इतना सवाल आते नहीं है सर्विसिंग से, ठीक है। वेपर साइकिल थोड़ा देख लेना, बेसिक कंसेप्ट। प्रेशराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशराइजेशन कंट्रोल कैसे होते हैं। फिर आपका प्रेशराइजेशन का जो नॉमेनक्लेचर्स हैं, नॉमेनक्लेचर्स मतलब कितना प्रेशर होना चाहिए कितने ऑल्टीट्यूड पे, ठीक है। फिर कितने तक हम लोग सहन कर पाते हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उससे नीचे आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा प्रेशराइजेशन तो कौन सा वाल्व काम करेगा, सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। और एयर साइकिल मशीन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, बिकॉज ऑल द हैवी एयरक्राफ्ट्स आर हैविंग एयर साइकिल मशीन नाउ, ओके। सो एयर साइकिल कंप्रेशन में क्या है कि एयर ही यूज़ होता है ठंडा करने के लिए। और वेपर साइकिल में क्या है कि जो हम लोग का फ्रिज होता है ना, घर में फ्रिज होता है, विंडो AC होता है, तो वो है वेपर साइकिल कंप्रेशन। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर जब मैं बताऊंगा। अभी एयर साइकिल मशीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव ऑलरेडी ट्राइड टू कवर अप, ओके, but still if I am not done, I don't remember what I have done, but anyway, even if I have not done it, I'll definitely do that series, okay. I'm in a mood to complete the entire thing, entire syllabus, ठीक है। हर एक पॉइंट को टच करूँगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। वेपर साइकिल मशीन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट नॉट दैट मच एयर साइकिल मशीन की तरह, ओके। मॉडर्न एयरक्राफ्ट में काम करना है तो एयर साइकिल मशीन शुड बी देयर इन योर माइंड, सेट इन योर माइंड प्रॉपर्ली। इसके बाद आता है ये एवियोनिक्स का पार्ट। अब देखिए एवियोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि B1 का जो सिलेबस है ना, अभी B1 का जो लाइसेंस होने वाला है, ये एवियोनिक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करेगा, ओके। एंड दैट इज़ द रीज़न, यू नो, most of the aircraft components and most of the aircraft systems are now having avionics things, lots and lots of avionics things are related to it. कोई भी मैकेनिकल सिस्टम काम करता है ना, उसके साथ कहीं ना कहीं पे आपका एवियोनिक्स जुड़ा हुआ है उसके साथ, ठीक है।
तो इंस्ट्रूमेंट का जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है, ये यासा का एक ही चैप्टर है जहाँ पे आपको ये इंस्ट्रूमेंट का ये सिस्टम मिल जाएगा और एवियोनिक्स का ये सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन नेविगेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैंने कोई सिंगल टिक इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार मार्क वाला चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है मैं अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम लोग जो मैकेनिकल साइड से है ना, उन लोगों का एवियोनिक्स थोड़ा वीक रहता है एंड इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड कि इंस्ट्रूमेंट में हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन होता जो है ना वो बहुत ही सिंपल होता है। देखिए ये तो नॉर्मल नेचुरल फिजिक्स ही है ना, नॉर्मल नेचुरल फिजिक्स है, जो नेचर में जो भी होता है वही हम लोग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग उसको रेप्लिकेट करते हैं, वही चीज़ हम लोग को इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिलता है। अब बस हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट आइडिया लगाया है उस बहुत सारे डिफरेंट चीज़ को मेजर करने के लिए, तो वही काम इंस्ट्रूमेंट करता है। तो हर एक जगह पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग काम है, तो वो हमको देखना है। एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम में यहाँ पे मेनली 3 सिस्टम्स हैं, ऑटो फ्लाइट वाला या ऑटो पायलट वाला जो बोला जाता है, फिर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेविगेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन नेविगेशन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि कितना किस कौन से वाले सिस्टम का क्या फ्रीक्वेंसी है, और उसके साथ साथ कौन सा वेव कितना फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल करता है, कहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, मतलब कहाँ एम है कहाँ एफएम है, फिर कौन सा वेव कितना दूर तक ट्रैवल कर सकता है, ये सब सवाल आते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं और मैक्सिमम न्यूमेरिकल सवाल होते हैं इससे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, इतना से इतना मेगाहर्ट्ज़ हो गया, इतना से इतना गीगाहर्ट्ज़ हो गया। फिर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोगेशन होता है, एक होता है ग्राउंड वेव होता है, एक होता है स्काई वेव जो स्काई में जाता है, एक होता है स्पेस वेव जो स्पेस तक चला जाता है। तो ये सब इसमें मिल जाएगा आपको कम्युनिकेशन नेविगेशन में, ठीक है। उसके साथ साथ और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर देयर कि ऑटोमेटिक सर्वेलेंस कैसे हो जाता है ऑन एयर में, फिर एक एयरक्राफ्ट कैसे अपने आप पाथ जो है उसको ट्रैवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कैसे उसको पता लगता है कि वो सही जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली देखो बहुत सारे बुक में ये 3-4 चैप्टर में डिवाइडेड है। जैसे मैंने इसमें ना ग्रीन करके हाईलाइट करके रखा है कि एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, माइक टूली एंड डेविड वेट का एक बुक है, ठीक है। माइक टूली से ही नॉर्मली उसको जाना जाता है। ये जो बुक है ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक है माइक टूली का। इसका चैप्टर 4, 5 और 6 आप अगर कर लोगे तो आपका ये जो सब मॉड्यूल है इलेक्ट्रिकल पावर, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका 4 में है बैटरी, ठीक है, 5 में है डीसी एसी पावर का सब कुछ, और 6 में आपको मिल जाएगा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये ट्रांसफार्मर्स, रेक्टिफायर्स, सर्किट प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल पावर एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, एपीयू पावर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये 5 चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और मैं सारा कवर भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। हाईलाइटेड है पूरा मेरे पास, मैं सारा कवर करवा दूंगा। आप खुद भी चाहो तो खुद पढ़ सकते हो उसको। हाईलाइटेड फॉर्म में रहने से अच्छा ये होता है कि रिविजन के टाइम पे ना बस एक बार आप उसको पढ़ लो, अच्छे से हाईलाइट कर लो कि आपको कौन सा वाला लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए, उसको एक बार पढ़ के अच्छे से समझ लो और हाईलाइट कर लो। उसके बाद क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना उसको, बस वो हाईलाइटेड वाला पार्ट पढ़ा करो, पूरा मत पढ़ा करो। पूरा पढ़ोगे तो फिर से टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। वो एक ही चीज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ द आइडिया इज़ क्लियर टू यू, आपको बस रिवाइज करना है कि क्या था, ठीक है। फिर मैं जैसे उस पेज में जाऊंगा ना, वन बाई वन व्हेन आई जस्ट क्रॉस चेक दोज हाईलाइटेड लाइंस, या फिर वो स्टार मार्क वाला पॉइंट या अंडरलाइन वाला जगह को मैं पढ़ लूँगा, इट विल ऑटोमेटिकली कम इन टू माई माइंड लाइक अच्छा ये तो ये था और ये वाला ये होगा, बस दैट्स इट। और डीजीसीए का सवाल भी वैसे ही आते हैं। टिपिकली 1 line विल बी गिवन एज एन ऑप्शन, ओके, मे बी, और 1 line विल बी टेकन फ्रॉम द बुक एंड गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। सो ऐसे होते हैं। फिर हो गया आपका इक्विपमेंट फर्निशिंग, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। यहाँ से लाइक सवाल भी बहुत छोटे आते हैं कि इक्विपमेंट कौन सा टाइप का होता है, सीट बेल्ट वगैरह जो भी आता है उसका आ जाएगा। कौन सा सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड 25 है, जिसको फॉलो करके हम लोग सब कुछ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट फर्निशिंग जो भी है उसको मेंटेन करते हैं जहाज़ के अंदर। तो ये आप यासा वाला कर लोगे। मेरे पास ऑलरेडी मेरा जो ड्राइव का लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा, आई हैव अ हैंड रिटन नोट, छोटा 3 या 4 पेज का नोट है, दैट इज सफिशिएंट टू क्लियर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। यू कैन डू इट इन 2 ways। आइदर आप एक बुक को पढ़ो, ठीक है, पढ़ने के बाद जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है एक पेज लो, उसमें लिख लो, बस पॉइंट लिख लो छोटा, पूरा लाइन से नहीं लिखना है उसको कि हाँ ये होता है तो ये होगा, ऐसा नहीं लिखना है। राइट जस्ट ओनली द पॉइंट्स, पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड लिख लो ऊपर की 8825 इक्विपमेंट फर्निशिंग। अब सबसे पहले ऊपर में लिख लो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड 25। तो ये नहीं लिखना है कि सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड 25 इज बीइंग फॉलोड टू कीप दोज इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स एंड फर्निशिंग्स इनसाइड द एयरक्राफ्ट एंड केबिन एंड दिस इज फॉलोड बाय याजा एंड ऑल दिस। इतना कुछ नहीं करना है, सिंपल लिख दो CS25 या फिर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड 25। तब जब रिवाइज करोगे तब इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस वो वर्ड पढ़ लोगे ना, वही दिमाग में रह जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में तो इतना लंबा ऑप्शन आने नहीं वाला है, राइट। ऑप्शन में तो छोटा ही ऑप्शन आएगा कि विच स्टैंडर्ड इज फॉलोड। अब उसमें कंफ्यूज करने के लिए 26 भी दिया रहेगा, 29 भी दे सकते हैं, CS29 CS26। अब ये होते ही नहीं है, हम लोग को क्या होता है, हम लोग का ऑप्शन क्या है 25। तो ताकि कंफ्यूजन ना हो तो ओनली द आंसर पार्ट, ओनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि क्वेश्चन में आ सकता है या आंसर में आ सकता है, उसको बार बार रिवाइज करो। इससे मसल मेमोरी डेवलप होता है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से क्या होता है कि इट विल गेट सेट इन योर माइंड परमानेंटली, ठीक है, फिर आप भूलोगे नहीं उसको। तो दैट शुड बी द लॉजिक। एक हो सकता है कि बुक का वो पर्टिकुलर चैप्टर प्रिंट आउट कर लो, तो छोटा छोटा चैप्टर लगेगा, आपको लगेगा अरे ये तो आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ, इतना तो पेज है, इट्स हार्डली 20 पेजेस 30 पेजेस। मार्क कर लो तो देखना कि और छोटा हो गया वो, ठीक है, अब तो कम कंटेंट पढ़ना है। या फिर दूसरा क्या उपाय है कि उसको देखते रहो एक साइड में और एक कॉपी में अपना नोट बनाते रहो। फिर नोट को जस्ट रीड द नोट्स बिफोर योर एग्जाम, कीप रिवाइजिंग द नोट्स, वही बहुत है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक कर लो, काम खत्म, आराम से निकल जाएगा। आई कैन चैलेंज यू, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, फायर प्रोटेक्शन। ये तो यासा बुक से मिल जाएगा, इससे भी ज़्यादा नहीं आता है, मैं अलग से हाईलाइट करके लिख दिया हूँ कौन कौन सा टाइप होता है, वो कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, हाउ दे वर्क, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। जैसे लिंडबर्ग हो गया, तो लिंडबर्ग सिस्टम कैसे काम करेगा, अगर किडी सिस्टम है तो कैसे काम करेगा, अगर फेनवॉल सिस्टम है तो कैसे काम करेगा, ठीक है। कौन सा टाइप का सॉल्ट उसमें यूज़ होता है, किस में कैसा कंडक्टर है, कौन सा वाला नेगेटिव होता है, कौन सा वाला पॉजिटिव, ये सिंपल बेसिक चीज़ है। टाइप देख लो कैसे काम करता है वो देख लो, और कौन कौन सा केमिकल यूज़ होता है एक्सटिंग्विशिंग करने के लिए। दो ही टाइप का यूज़ होता है, एक होता है 1301, दूसरा होता है 1211, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। सो ये दो टाइप का सिस्टम है, और ये दो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, किसका यूजेस ज़्यादा है, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैक्सिमम मेजोरिटी सवाल जहाँ से आते हैं मैं उसी को टिक किया हूँ, और उसी पर्टिकुलर चीज़ को मैंने साइड में लिख के हाईलाइट भी कर दिया हूँ मैंने, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा वाला जो चैप्टर है फ्लाइट कंट्रोल, देखिए यहाँ पे ना मैंने स्टार्क मारा है, ना मैंने कहीं पे टिक किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला चैप्टर ना है तो इम्पॉर्टेंट है, ये लेवल 3 वाला, ये जानना ज़रूरी है फॉर योर नॉलेज, 100% ज़रूरी है। एज अ B1 इंजीनियर यू डेफिनेटली रिक्वायर टू नो दिस, लेकिन सवाल इससे बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, सवाल इससे बहुत ही कम आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चैप्टर को छोड़ दोगे, जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को एक कंटिन्यूअस रिवीजन मार लो इसका, एक बार एक झलक देख लो उसको बस, और कुछ नहीं करना है इससे, ठीक है। तो क्योंकि इससे सवाल बहुत कम आते हैं, तो हमको बस एक बार पढ़ लेना इसलिए है क्योंकि अगर एक भी आ गया तो वो छूटना नहीं चाहिए बस, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम अगर नहीं भी दोगे तो दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ फ्यूल सिस्टम में, यहाँ से कौन सा वाला आता है, फ्यूल टैंक रिलेटेड आएगा, कैसा टाइप का फ्यूल टैंक है वो आ सकता है, फ्यूल टैंक का जो एक्सपेंशन स्पेस होता है कितना हो सकता है, दैट इज़ 2%, ठीक है। फिर अंदर जो फ्यूल ब्लैडर होता है, वो ब्लैडर कैसे उसके साथ टाई किया रहता है। फिर डंपिंग में कैसे होगा, वेंटिंग अगर होगा तो डंपिंग कैसा होगा, वेंटिंग कैसा होगा, ड्रेनिंग सिस्टम कैसा होगा, ये सब हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस फीड या ट्रांसफ़र से क्वेश्चन आ सकता है कि क्रॉस फीड कैसे होता है, एक टैंक से दूसरे टैंक में कैसे तेल जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से उसके अंदर कौन सा वाला पंप रहेगा जो इंजन तक भेजेगा, तो बूस्टर पंप रहता है जो इंजन तक बूस्ट करके तेल को भेज देता है, ठीक है, इंजन के पंप तक। तो ये सब है, तो यहाँ से ही आराम से हो सकता है, ज़्यादा देखने का नहीं है। यहाँ से भी बहुत ही कम सवाल आते हैं, हाइड्रोलिक पावर से भी बहुत कम सवाल आते हैं। वल्व्स वगैरह थोड़ा देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा है वो फ्लूइड रिलेटेड आया हुआ है, हाइड्रोलिक फ्लूइड कैसा होता है। एक बहुत जाना पहचाना सा क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है वो क्या करता है, वो कंप्रेस करता है या फिर वो प्रेशराइज करता है, पुल टाइप ऑफ फोर्स होता है या फिर पुश टाइप ऑफ फोर्स होता है। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड हमेशा पुश कर सकता है, कभी भी कोई फ्लूइड पुल नहीं कर सकता किसी चीज़ को, हमेशा पुश कर सकता है, ठीक है। जैसे एक्चुएटर में हो गया, लैंडिंग गियर में हो गया, हमेशा इट्स ऑलवेज कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, इट्स ऑलवेज कंप्रेसिव फोर्स, तो वो पुश कर सकता है हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो ये एक सवाल होता है। दूसरा क्या होता है, वो फ्लूइड किस किस टाइप का होता है,
वेजिटेबल बेस होता है तो वो कोरोसिव होता है कि नहीं, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, अगर वो फॉस्फेट ईस्टर बेस है तो उसके साथ कौन सा रबर का कौन से मटेरियल का सील आप यूज़ करोगे, मीन्स ऑल रिलेटेड टू फ्लूइड इट विल कम. ओके, nothing that as that complicated from the system or anything. Simple questions. फिर आइस एंड रेन प्रोटेक्शन से वही देखना है एंटी आइसिंग सिस्टम कैसे होता है, डी आइसिंग सिस्टम क्या क्या होता है, कौन कौन सा टाइप का हीटिंग कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन सा टाइप का हीटिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल हीटिंग कहाँ होगा, हॉट एयर वाला हीटिंग कहाँ होगा, केमिकल हीटिंग कहाँ होगा, कहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, यही मेन यहाँ से देखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, और दूसरा कि लिक्विड जो है उसका क्या नाम है, उसका क्या ग्रेड है, बस इतना ही है. फिर AMR से भी कर सकते हो या फिर यासा से भी कर सकते हो. लैंडिंग ईयर वाला चैप्टर ये भी बोलूँगा तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है कि यहाँ से भी बहुत ही कम सवाल आते हैं. दो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, बट यहाँ से भी बहुत कम सवाल आते हैं क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो है ना अभी सिस्टम ओरिएंटेड आ रहे हैं, और वो एवियोनिक्स सिस्टम से रिलेटेड जो सवाल है वो ज़्यादा आ रहे हैं. कैसे सिस्टम में क्या इंडिकेशन आएगा, क्या नहीं आएगा, सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कहाँ पे क्या वाल्व है, कौन सा वाल्व इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है, कितना उसमें करंट है, क्या है नहीं है, ये सब सवाल है ऑल मैक्सिमम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड थिंग्स. ठीक है, तो मैकेनिकल वाला क्वेश्चन थोड़ा कम हो गया है. सिस्टम का इम्प्रूवमेंट होने से, एयरक्राफ्ट के मॉडिफिकेशन होने से, अपग्रेडेशन से, अभी मैकेनिकल वाला चीज़ थोड़ा कम हो गया क्वेश्चन. ठीक है, तो दे आर पुटिंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू एवियोनिक्स पार्ट एज वेल एज मैकेनिकल पार्ट. दोनों जगह से ही क्वेश्चन आते हैं. इसलिए जो बड़े बड़े जो सिस्टम्स है ना एयरफ्रेम का, तो वो वाले सिस्टम से क्वेश्चन बहुत हट गया है. तो लैंडिंग गियर से कंस्ट्रक्शन देख सकते हो. ठीक है, कौन सा टाइप का होगा, एक्सटेंशन वाला क्या होता है, रिट्रैक्शन वाला क्या होता है. फिर दूसरा आता है कि वो एक लाइट का कंडीशन होता है कि लैंडिंग गियर अप हो गया, लॉक हो गया तो कौन सा कलर होगा, डाउन हो गया कौन सा होगा, अगर ट्रैवल कर रहा है बीच में, उठ रहा है या नीचे आ रहा है तो कौन सा कलर होगा. ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएगा. वार्निंग, अगर कोई वार्निंग वाला है तो वार्निंग वाला सिग्नल कैसा होगा, यही सब है. फिर लाइट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइट से घुमा फिरा के 2-4 सवाल आ ही जाता है. ठीक है, ये माइक टूली का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बुक जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं, उससे चैप्टर नंबर 12 से पूरे चैप्टर को अच्छे से करना है. वो भी मैं करवा दूंगा. लाइट का मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, सॉरी. तो उसमें क्या है कि जो जो पॉइंट ना मैंने मार्क करके रखा है उस पर्टिकुलर PDF में लाइट का, उसको आप प्रिंट आउट कर लो, या फिर प्रिंट आउट मत करो तो कम से कम उसको पढ़ लो, आराम से निकल जाएगा. मैक्सिमम क्वेश्चन वो हाईलाइटेड पार्ट से आने वाले. ठीक है, फिर जो पार्ट आता है वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से दो ही चीज़ देखना है, सिस्टम कैसा होता है ऑक्सीजन का, कॉकपिट में कैसा है, केबिन में कैसा है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑक्सीजन. ठीक है, और कंट्रोल जो होगा, मतलब सप्लाई रेगुलेशन जैसा होता है कि एक होता है कंटिन्यूस टाइप होता है, कब होगा कंटिन्यूस टाइप सप्लाई, एक होता है प्रेशर रेगुलेटिंग वाला जो आप रेगुलेट कर सकते हो, जिसको ऑन डिमांड भी बोला जाता है कि डिमांड वाइज उसको वेरी कर सकते हो. एक होता है कंटिन्यूस फ्लो टाइप जो पैसेंजर का रहता है, क्रू का रहता है ऑन डिमांड टाइप. क्रू अगर चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन पैसेंजर नॉर्मली उसको नहीं कर सकता है. इमरजेंसी के टाइम पे कैसा हो जाएगा सिस्टम, इमरजेंसी के टाइम पे क्या कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा या फिर उस टाइम भी आप कंट्रोल कर पाओगे, यही सवाल छोटे छोटे सब आते हैं. ठीक है, न्यूमेटिक वैक्यूम सिस्टम से भी वही है. सोर्सेस क्या है एयर का, न्यूमेटिक एयर का. फिर उसका कंट्रोल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कितना डायमीटर का होज नॉर्मली यूज़ किया जाता है, 3 to 4 इंच का डायमीटर का होज यूज़ होता है. फिर वेस्ट से 2-3 सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आते हैं कि वेस्ट का जो टैंक है उसको क्लीन कैसे किया जाता है, केमिकल कुछ उसमें मिलाया जाता है कि नहीं क्लीनिंग करने के लिए वक्त. ठीक है, ताकि वो एंटी कोरोसिव कुछ एक्शन बन सके उसके अंदर. इतना ही है. फिर ऑनबोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम से क्या करना है, ऑनबोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम से दो चीज़ देख लेना है थोड़ा सा आपका जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सवाल इससे आते नहीं है. सेंट्रल मेंटेनेंस कंप्यूटर एक पार्ट है. ठीक है, कि ये एक ऐसा कंप्यूटर है ना जहाज़ में जो जितने सारे मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं उसको वो बेसिकली एक मेंटेनेंस पर्सन को दिखा सकता है कि कहाँ पे खराबी है, क्या ख़राब है, वो सिस्टम में इंफॉर्मेशन आ जाएगा. सेंट्रल मेंटेनेंस कंप्यूटर से आप वो चीज़ को मॉनिटर कर सकते हो जहाज़ में. ठीक है, इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑन ऑल द थिंग्स दैट आर डिफेक्टिव टू शो टू द इंजीनियर और द टेक्निकल पर्सन आफ्टर द एयरक्राफ्ट लैंड्स. ओके,
इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम भी होता है, जो ई डॉक्स जहाँ पे हम लोग रखते हैं, पायलट रखते हैं ई डॉक्स। आप आपका सारा कंपनी का मैनुअल रख सकते हो उसमें। जितना सारा आपका मैन्युफैक्चरर्स का मैनुअल्स है, एयरफ्रेम मैनुअल हो गया, फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल हो सकता है, एमएमईएल हो सकते हैं, एमईएल हो सकते हैं, फिर और भी जितना सारा है सारा सॉफ्ट कॉपी आप उसमें रख सकते हो, ताकि यू डोंट हैव टू कैरी ऑल द ह्यूज पेपर मैनुअल्स। ओके, दैट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू इट। वेट सेविंग भी है और फास्टर भी है और हैंडी भी है थोड़ा। और फिर वो जो चैप्टर आएगा वो आएगा इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर एवियोनिक्स। यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी नए एयरक्राफ्ट में। अब इतना सारा पॉइंट मैं अलग से नहीं हाईलाइट किया हूँ, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं यहाँ से पूछेगा, कौन कौन से एयरक्राफ्ट में अभी यूज़ हो रहे हैं मॉडर्न एयरक्राफ्ट में, कितना स्पीड हो सकता है इसका, हर एक अलग अलग टाइप का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ये सब क्वेश्चन इससे आते हैं। कौन से चैप्टर से करना है? माइक टूली का एक इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का एक बुक होता है, ठीक है, जो हम लोग मॉड्यूल 5 में करते हैं। डिजिटल का जो हम लोग का मॉड्यूल है, डिजिटल एंड इंस्ट्रूमेंट का जो मॉड्यूल है, उसमें हम लोग करते हैं जिस बुक को फॉलो, उसी माइक टूली बुक से आपको आईएमए का चैप्टर करना है। ठीक है, आईएमए का जो चैप्टर है वो कर लोगे उससे, तो आराम से हो जाएगा आपका। फिर केबिन सिस्टम में क्या करना है, वो जो पुराना वाला बुक मैंने बोला था, उससे पहले माइक टूली का दूसरा जो बुक मैंने बोला था, एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे चैप्टर नंबर 13 कर लेना है। पूरा चैप्टर को करना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं। केबिन सिस्टम में, इनफ्लाइट सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे इंटरफोन सिस्टम होता है, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं केबिन में, कोई एक्सटर्नली बात कर सकता है कि नहीं, केबिन से बाहर फ़ोन कर सकता है कि नहीं ग्राउंड में, फिर ग्राउंड कुछ बात कर सकता है कि नहीं, अंदर क्या क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइम्स। चाइम्स मतलब आवाज़ कौन कौन सा होते हैं। ठीक है, एक सिंगल चाइम मतलब सिंगल एक आवाज़ हो गया, टिंग करके एक आवाज़ होगा, तो वो हाई हो सकता है आवाज़, वो लो हो सकता है आवाज़, हाई लो हो सकता है, 3 हाई लो हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग, ये आवाज़ का मतलब क्या होता है कि कौन किसके साथ बात करना चाह रहा है केबिन में। जैसे अगर यू नो पायलट को, केबिन क्रू को कुछ बताना है, पायलट को इमरजेंसी के टाइम या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है केबिन क्रू को, तो 3 हाई लो चाइम होगा। ठीक है, 3 हाई लो चाइम होगा कि थोड़ा ज़ोर से भी होगा, फिर लो भी होगा। तो उससे क्या होता है, इट इज़ लाइक एन इमरजेंसी कॉल कि या आई वांट टू टॉक टू द केबिन क्रू। ओके, सो और एक सिंगल वाला होता है जिससे कि पैसेंजर केबिन क्रू को बुलाता है। फिर एक हाई लो वाला होगा जिससे समझ में आता है कि केबिन क्रू टू केबिन क्रू। तो दीज यू कैन रीड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, ये भी हाईलाइटेड मेरे पास है, मैं इसका भी करवा दूंगा आपको, और ये पीडीएफ भी रहेगा। ठीक है, चैप्टर 13 का ये कर लोगे आराम से, आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सारे जितने चैप्टर बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको करना है, लेकिन हाईलाइट करना है उसको। हाईलाइट करके आपको क्या करना है कि उसी चीज़ को पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है और जो आने का चांसेस 100% है। अब आपको लग सकता है कि ये मैं कैसे समझूंगा, तो उसके लिए मैं हूँ, मैं आपको बता दूंगा। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे सीरीज़ को ख़त्म करना। जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी पीडीएफ में अपलोड कर रहा हूँ, ये सारे चैप्टर्स मेरे पास है, सिंपल चैप्टर में डिवाइडेड है और हाईलाइटेड भी है। मैं एक के बाद जो किया हूँ, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो नहीं किया हूँ उसको भी कर दूँगा। ठीक है, आपको बस करना क्या है, उसको रिवाइज़ करना है। ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम से सवाल आते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, वही ई डॉक्स है, ई लाइब्रेरी है, ये सब आएगा। फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम जो है, नेटवर्क सर्वर सिस्टम जो है, वहाँ से एक दो सवाल आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, याज़ा इज़ मोर देन इनफ, ये आप कर सकते हो। दूसरा अगर कोई बुक है तो मैं रेफ़र करने के लिए बोल दूँगा, लेकिन याज़ा इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, लाइक याज़ा यू अंडरस्टूड कि वो जो बुक है ये हर जगह पे लग रहा है, हर एक चैप्टर की लग रहा है, क्योंकि ये वो जीस्ट है। उसके साथ साथ जो और 2 बुक इंपॉर्टेंट है वो है कि माइक टूली का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक, और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का बुक। ठीक है, उसके साथ साथ एएमआर जो है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना 2-2 स्टार है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिंगल स्टार है, इसका मतलब है कि ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। इससे आप जो मैंने बोला है चैप्टर उसी को करो, और बस जो आपको लगता है कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा है क्वेश्चन बैंक में लेकिन रेफरेंस नहीं मिल रहा था, उसके लिए आप ये सिंगल स्टार वाला चैप्टर को बुक को देख सकते हो। ठीक है, EHJ पैलेट का जैसा ये जो इलेक्ट्रिकल बुक है, ये पूरा ही इलेक्ट्रिकल का बुक है। अब इतना सारा क्वेश्चन नहीं आने वाला इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का वो माइक टूली वाला जो मैंने बोला है वही को, उसी को कर लोगे, उसी से आपका आराम से निकल जाएगा। लेकिन
for your knowledge, and some questions, if one or two questions you don't get the answer in that book, you can search here. इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, ठीक है. लास्ट में है एसी कार मोड और कैब 459. अब देखोगे किसी किसी क्वेश्चन बैंक जो है ना किसी किसी का, उसमें आप देखना कि ये रेफरेंस रहता है. अब होता है किसी किसी क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि वहाँ पे यहाँ से भी उठाया जाता है क्वेश्चन को, लेकिन वो बहुत कम है. इफ़ यू clear the syllabus, if you complete the syllabus from YASA, then you already have a basic idea to answer those questions, ठीक है. तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो टच होगा ही उसमें. उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं थ्योरी ऑफ फ्लाइट का जो हाई स्पीड वाला चैप्टर है वो एसी कार मोड से करूँगा, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको अगर लगता है कि कैब 459 पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसा कुछ है जो मुझे थोड़ा जाना, देखिए कैब वाला जो बुक है ना ये बहुत मोटा है, आपने देखा होगा अगर स्कूल के लाइब्रेरी में आपका. कैब वाले बुक में ना मैक्सिमम जो होते हैं वो होते हैं मेंटेनेंस का प्रोसीड्यूर, सब उतना देखना नहीं है. मॉड्यूल 11 का जो है मैं जीस में बता देता हूँ. मैकेनिकल सिस्टम का आपको जो मैक्सिमम जो जानना है इससे वो है कि सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या टाइप्स है, ठीक है. दूसरा क्या जानना है कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से जान लेना है, और एरोडायनामिक्स बहुत अच्छी तरीके से आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है. और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि सिस्टम कैसे फंक्शन करता है वो जानना ज़रूरी है. लेकिन सर्विसिंग वाला जो है या मेंटेनेंस वाला जो पार्ट है, प्रोसीड्यूर मेंटेनेंस प्रोसीड्यूर का जो पार्ट है वो इसमें बहुत ही कम आते हैं. ओके, तो कैप इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. कैप में ज़्यादा मेंटेनेंस रिलेटेड है. अब मेंटेनेंस रिलेटेड सवाल इतना आएगा नहीं, क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा है ना, इतना सिलेबस इतना लंबा है कि सिस्टम से क्वेश्चन करते करते ही मेंटेनेंस का और जगह नहीं रहता है क्वेश्चन करने का, ठीक है. तो मेंटेनेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत कम ही मिलेंगे. आपको सिस्टम जानना ज़रूरी है. अभी एवियोनिक सिस्टम इतना भारी पड़ रहा है कि एवियोनिक सिस्टम जानना भी बहुत इक्वली ज़रूरी हो गया. इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम्स है वहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं. इसलिए मैंने बोला वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है. जहाँ जहाँ पे जितना जितना लगेगा मैंने बोल दिया है. ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर वीडियो इन माइंड एंड आपको पढ़ना है, ठीक है. बुक भी मैंने बोल दिया, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कौन से चैप्टर करना है, क्या करना है, कितना करना है. साइड में टिक किया हुआ हूँ, और जो स्टार वाला चैप्टर है उसको तो करना ही करना है. तो नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ यू विल स्टार्ट. माई सजेशन इज़ टू स्टार्ट विद द स्टार चैप्टर्स. ओके, वंस द स्टार चैप्टर्स आर रेडी 65 to 70% ऑफ योर सिलेबस विल बी रेडी इन योर हैंड. उसके बाद आप पैरेलली क्या करना, पैरेलली आप स्टार्ट कर दो आपका क्वेश्चन बैंक करना, ठीक है. पैरेलली आप अपना क्वेश्चन बैंक करना स्टार्ट कर दो, और वो वाला क्वेश्चन बैंक किया करो जिसमें ना रेफरेंस हो. जिसमें रेफरेंस नहीं है ना वो मत करो. जिसमें रेफरेंस नहीं है वो मत किया करो. उससे क्या होता है कि आपको पता नहीं लगता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. इसलिए थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक किया करो. उससे फ़ायदा क्या होगा कि यू विल कम टू नो एटलीस्ट कि ये गलत है या सही है. आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे. बहुत तो बार ये होता है ना कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, उसके बाद एक गलती जो हम लोग कर लेते हैं वो ये करते हैं कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं जिसमें क्वेश्चन तो 1000 होगा लेकिन उसमें ना रेफरेंसेस गलत होते हैं. अगर वहाँ पे 1000 क्वेश्चन में अगर 50 भी गलत है और उस 50 से अगर आपका 10 या 15 भी क्वेश्चन आ गया तो आप बुरा फंस जाओगे पूरा, ठीक है. वही 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का एक टॉलरेंस रहता है जो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में लोगों को 104 103 पे जाके रोक देता है, लेकिन 105 नहीं लाने देता है, ठीक है. तो ये गलती नहीं करना है, पढ़ना है, और ऐसा रेफरेंस बुक ऐसा क्वेश्चन का बैंक फॉलो करना है. ग्रुप में या बहुत जगह पे बहुत डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन बैंक मिलता है, फॉलो किया करो नो डाउट. लेकिन अगर उसमें रेफरेंस है, और हो सकता है अगर आपके पास टाइम है, आपने अगर बुक पढ़ा है तो आपके लिए और भी आसान होगा कि रेफरेंस जो है उसको मिला लेना. अगर नहीं मिलता है तो उस बुक में जाओ, उस पेज नंबर पे जाओ. बहुत जगह पे पेज नंबर भी मार्क किया होता है कि हाँ इस पेज में ये रहेगा, तो जाके एक बार देख लो ना, क्या प्रॉब्लम है. पढ़ लोगे तो और भी आसान हो जाएगा और भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है. तो ये नहीं करना है, ये गलती कभी नहीं करना है कि कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लिया जिसमें कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, उसको पढ़ लिया. मुझे लगा कि यार मुझे तो सब आता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन गलत था. वो भी किसी ना किसी ने किया होगा, उसको जो सही लगा होगा शायद उसने वही मार दिया होगा, ठीक है. लेकिन आपको आपका जो एग्ज़ाम है उसको आपको जिम्मेदारी से करना है. ओके, सो read the book. It is very important to read the book not only for your knowledge but also for the typical questions that come in the DGC exam. Okay, that's all about it. If you have any doubt regarding any other module, you can ask me. Also, if you have any
questions regarding this particular video, you can definitely ask me. No problem. Thank you so much.